सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अमीन्स। ये जो लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इसमें देखो ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स है कि अमीन्स को हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे। एज यू नो, अमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। सो इफ यू रिमूव द हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया, if you remove one hydrogen by alkyl group, it is known as primary amine. If you remove two hydrogen by alkyl group, it is known as secondary amine. If you remove all the hydrogen atom of ammonia by alkyl group, so it is known as primary amine, secondary amine and tertiary amine. So first of all, we will take the method of preparation of amine from alkyl halide. तो देखो ये हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी डिस्कस किया था कि जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ RX प्लस NH3, तो NH3 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं NH2, तो इसमें प्रिपरेशन होगा RNH2 प्लस HX का। जैसे आप C2H5Cl है, इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करोगे, ये प्रोडक्ट बनेगा C2H5NH2 प्लस HCl। लेकिन यही यदि रिएक्शन में दिया हुआ रहेगा कि अल्काइल हैलाइड इज प्रेजेंट इन एक्सेस एंड इफ इट रिएक्ट्स विद अमोनिया, देन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट you will get a mixture of amines. So the mixture of amines can be C2H5NH2, then again because we are taking here C2H5Cl, स्पेसिफिक कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग, और Br, so then C2H5Br, it will give you C2H5 twice NH, and again it reacts with C2H5Br, so you will get C2H5 thrice N, and again it reacts with C2H5Br, so you will get C2H5N, C2H5 4 times N plus and Br minus, so you will get a mixture of primary, secondary, tertiary and quaternary salt of amines. So by this way we can prepare the method of amine. The second method is, it is prepared from alcohol. We can use alcohol. So second number is from alcohol. So when alcohol reacts with ammonia, we will get a product that is amine, RNH2. Similarly, if you take alcohol in excess, if alcohol is in excess and if it reacts with ammonia, so you will get a mixture of primary, secondary and tertiary amine. So in this case you will not get the quaternary salt of amine. Why we will not get the quaternary salt of amine? Because ammonia, when it is formed, and alcohol which is not highly polar in nature, so we will get only tertiary amine along with primary and secondary. So you will get C2H5, or we are taking normal, so it is RNH2 plus H2O. Again you have alcohol in excess, so you will get secondary amine, and then alcohol, so you will get R3N. Like that we will get a mixture of amines. Then third method is, you can prepare amine from nitroalkane. So third method is from nitroalkane. So when nitroalkane reacts with any reducing agent like SnHCl or ZnHCl,
so you will get RNH2. Or if you take RNO2 plus LiAlH4, so you will get RNH2. So from reduction of, or by the reduction of nitroalkane, you will get the amines. Lithium aluminum hydride, so you will get C2H5NH2. Then fourth one is by reduction of cyanide and isocyanide. By reduction of cyanide and isocyanide. So if you take RCN or if you take RNC, so if you take RCN and if it is reduced in presence of lithium aluminum hydride, so you will get primary amine, whereas if you take alkyl isocyanide, you will get secondary amine. So based on the nature, whether it is cyanide or isocyanide, so it is prepared. It is prepared on the basis of this. So by this way we can prepare the amines. So as you know, if you take cyanide, so you will get primary amine. If you take isocyanide, you will get secondary amine. For example, if you take C2H5CN and if it is reduced in presence of any reducing agent, so you will get C2H5CS2NH2, and if you take CS3NC and if you reduce it, you will get CS3NHCS3. Then you can take the next method, that is by reduction of, it is called by reduction of amide and oxime, like aldoxime or ketoxime. So simply we can say it is by oxime. Oxime, you can take aldoxime or ketoxime. So as you already studied when we have discussed reaction of aldehyde and ketone with hydroxylamine, so we can prepare aldoximes and ketoximes and then it reacts. So when it is amide on reduction with like lithium aluminum hydride, so you will get RCS2NH2. Like that, if you take aldoxime or ketoxime, so if you take aldoxime or ketoxime, aldoxime is RC double bond NOH, and if there is H, it is called aldoxime. And if you take any reducing agent like lithium aluminum hydride, so you will get RCS2NH2. And if you use ketoxime and if it is reduced in presence of lithium aluminum hydride, so it is called ketoxime. So you will get RCrNH2. It is also primary amine because the functional group is NH2, that is known as primary amine. So accordingly, based on the nature of alkyl group, you can have the different product. Like if it is propanamide and if it is react with lithium aluminum hydride, so you will get CS3, CS2, CS2, NH2. So that is called by reduction of amide, aldoxime and ketoxime. Next method we will discuss, it is called by Hofmann bromamide degradation reduction. As you know, it is the naming reaction and it is very important reaction for preparation of amide. So by Hofmann bromamide degradation reduction.
As you know, this already we have discussed when we have discussed conversion, the method of preparation by amide. You can prepare amines. So it is Hoffman bromamide. So it is bromine plus amide. When bromine reacts with amide in presence of alkali, you can take the dilute alkali. So you will get RNH2 plus NaBr plus what? You will get Na2CO3 plus H2O. Like if you take C2H5, C double bond O NH2 plus Br2 plus KOH, dilute. So in this reaction what happens? The amide, the C double bond O, it is eliminated, it is removed. So you will get the product amine which contains one less carbon than that of amide. तो देखो हर एक जगह क्या कर रहे हैं हम लोग कि रिएक्शन में हमें हमेशा उस तरह का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चूज करना है जो हमें एल्काइल ग्रुप दे और एक जो है वो हमें NH2 ग्रुप प्रोवाइड करे, या जिसमें जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड, इसमें ऑलरेडी CN ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था, मतलब नाइट्रोजन भी था, तो उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते थे। तो जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि दो रिएक्टेंट को ऐसा चूज करना जो एक मॉलिक्यूल एल्काइल ग्रुप प्रोवाइड करेगा और एक NH2 ग्रुप प्रोवाइड करेगा, या यदि किसी कंपाउंड में कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है तो उसमें क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। या जैसे ये अमाइड है तो अमाइड में ये CO को रिमूव कर देंगे। तो CO को रिमूव करने के लिए जो है हॉफमैन ने यूज किया था, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, अब जैसे मान लो कि अब आप एसिड यूज करते हो, तो एसिड यूज करते हो तो एसिड में तो R ग्रुप उससे आएगा नहीं। कहने का मतलब यह है कि हमेशा हम लोग को चूज रिएक्टेंट इस तरीके से करना है कि एक तो हमें अल्काइल ग्रुप प्रोवाइड करे और एक NH2 ग्रुप प्रोवाइड करे। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन में, सेकेंड रिएक्शन में देखा था, है ना, जैसे अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं या अल्काइल हैलाइड से करते हैं। लेकिन जब हम रिडक्शन करते थे नाइट्रो एल्केन का, तो उसमें नाइट्रोजन और अल्काइल ग्रुप ऑलरेडी पहले से एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट था, तब उसमें हाइड्रोजन रिमूव करके हम लोग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रिमूव करके हाइड्रोजन ऐड करते थे, इसलिए इसको कहते हैं रिडक्शन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो सीखना है आपको। तो यहाँ ये प्रोसेस है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेड मतलब एक नंबर कम हो जाना, इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा C2H5NH2 प्लस K2CO3 प्लस KBr प्लस H2O। अब देखो नेक्स्ट जो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये है बाय गैब्लियर थैलामाइड रिएक्शन। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है क्योंकि अमीन्स को इसमें हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। सो इट इज बाय गैब्लियर, ये केमिस्ट का नाम है गैब्लियर थैलामाइड, गैब्लियर थैलामाइड रिएक्शन। तो गैब्लियर थैलामाइड रिएक्शन में क्या है कि जैसे कंपाउंड का नाम लिखने में आपको शुरू में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आती है, इसलिए देखो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं ताकि आप इसको इजीली याद रख सको। ये थैलामाइड है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये जो है ये थैलिक एसिड कहलाता है। तो थैलिक एसिड का रिएक्शन जब हम लोग अमोनिया के साथ करते हैं, अमोनिया को NH3 को मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इससे 2 मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव कर सको। तो जब 2 वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव करोगे आप तो ये बना, इसको कहते हैं हम लोग थैलामाइड। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये कैसे है, ये थैलामाइड, थैलामाइड मतलब थैलिक एसिड प्लस अमोनिया का रिएक्शन जब होता है तो इसको कहते हैं थैलामाइड, मतलब अमाइड हैविंग थैलिक एसिड। ये हो गया, इसको कहते हैं हम लोग थैलामाइड। तो रिएक्शन को हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, ये मैंने समझाने के लिए बताया था।
अब इसको जो ये जो थैलामाइड है, तो थैलामाइड का पहले रिएक्शन करते हैं हम लोग KOH के साथ. So it is thalamide, and if it reacts with KOH, so we'll get potassium thalamide. तो इसमें क्या होगा, इसमें जो N है ये यहाँ से H के साथ वाटर रिमूव होता है ऐसे, और ये हो गया COCOK प्लस H2O. इस थैलामाइड का रिएक्शन करते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड के साथ. एल्काइल हैलाइड के साथ ये रिमूव हो जाएगा. ये प्रोडक्ट बन गया हमारा C+O NR. ये आ गया क्या, इसमें एल्काइल ग्रुप आ गया, और इस एल्काइल ग्रुप का रिएक्शन करोगे आप NaOH या QH के साथ. यहाँ दो मॉलिक्यूल यूज करते हैं. मैं यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि इसमें दो मॉलिक्यूल यूज करोगे आप, तो यहाँ से क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा, RNH2 रिमूव हो जाएगा. सो यू विल गेट व्हाट, RNH2, और ये पार्ट क्या हो गया, ये हो गया COOK. ये कहलाता पोटासियम थैलेट. पोटासियम थैलेट, और ये आपको मिल गया प्राइमरी अमीन. तो ये नेमिंग रिएक्शन में भी पूछता है ये, और इसमें जो प्राइमरी अमीन मिलता है ये, इसको फिर सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्योर फॉर्म में है. तो थैलामाइड मेथड से हम लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो देखो ये हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ स्पेसिफिकली ये एलिफेटिक अमीन था. अब हम लोग डिस्कस करते हैं एरोमेटिक अमीन्स. या उसके पहले इसका यदि कोई स्पेसिफिक एग्जांपल लेना चाह रहे हो आप कि हम इससे इथाइल अमीन कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इथाइल अमीन कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो COONK प्लस इसका रिएक्शन C2H5Cl के साथ कर लेंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से. ये प्रोडक्ट हो गया इसमें CO, और यहाँ बन जाएगा NC2H5, और इसका रिएक्शन फिर कर लोगे आप KOH के साथ. तो दो मॉलिक्यूल ले लो KOH का दो मॉलिक्यूल लोगे आप, तो C2H5NH2 निकल गया प्रोडक्ट. सो दिस वन इज C2H5NH2 प्लस ये हो गया COOK. तो इस तरीके से हम लोग कोई भी प्राइमरी अमीन प्रिपेयर कर सकते हैं. अब हम लोग डिस्कस करते हैं एरोमेटिक अमीन्स. और एरोमेटिक अमीन्स में जैसा कि आपको सिलेबस में एनिलीन के बारे में जानना है, तो ये जो मेथड है ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, कि एनिलीन को कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं. तो एनिलीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो भी जैसा हमने डिस्कस किया था नॉर्मल मेथड. तो यदि नाइट्रोबेंजीन है, इसका रिएक्शन SnHCl के साथ करते हैं तो NH2 बनेगा. उसके बाद इसका यदि रिएक्शन हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन से करते हैं, सो इट इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन. तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन से भी ये NH2 बन जाता है ना. तो इस तरीके से जो है ये स्पेसिफिकली हम लोग एनिलीन के लिए यूज कर रहे हैं. तो एनिलीन को इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग. और जैसा कि आप जानते हो कि ये लास्ट चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो इसमें एक रिएक्शन जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. ये जो है ये 4th चैप्टर में, जैसे 1st, 2nd, 3rd एंड 4th चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो 1st चैप्टर में अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड था, 2nd में अल्कोहल फिनॉल ईथर, 3rd में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड 4th में ये है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमीन्स, एलिफेटिक अमीन एंड एरोमेटिक अमीन्स, और ये डाइजोनियम सॉल्ट. तो डाइजोनियम सॉल्ट को केवल एक ही मेथड से प्रिपेयर किया जाता है,
इसलिए हम लोग इसमें इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो जब हम लोग एनिलीन का रिएक्शन जो है, एनिलीन का रिएक्शन जब NaNO2 और HX के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करते हैं तो इसमें N2X का फॉर्मेशन होता है। इसको कहते हैं हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये इसमें चैप्टर में टोटल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया इसका अमीन्स का और ये डाइजोनियम सॉल्ट का। तो ये चैप्टर छोटा चैप्टर है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ही लेक्चर में हम लोग इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसका केमिकल रिएक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, और सेकेंड लेक्चर में मतलब सेकेंड वीडियो में हम लोग इसका जो टोटल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इसमें जो रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है, और प्रॉब्लम जो है उसमें बेसिक स्ट्रेंथ से ही आता है। जैसे प्लस आई इफेक्ट होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, माइनस अब आई इफेक्ट आएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको दो अलग अलग लेक्चर में, दो अलग अलग वीडियो में हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो ऐसे यदि हम एक वीडियो में कवर करते हैं तो वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए कि एक ही लेक्चर में यदि हम इसको कंप्लीट करें, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। तो आपको क्या होगा कि कॉम्पैक्ट स्टडी करने में ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग फिर डिस्कस करते हैं इसका इसी सेम वीडियो में, इसका केमिकल रिएक्शंस। सो लेट अस स्टार्ट विथ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। तो इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो इसका केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स में क्या देखना है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम अमीन्स आर बेसिक इन नेचर। अमीन्स क्या है, बेसिक है नेचर में। तो बेसिक यदि है नेचर में तो ये एसिड के साथ यदि रिएक्ट करेगा तो एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो फर्स्ट वन रिएक्शन विथ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मीन्स जो एसिड इनऑर्गेनिक एसिड होता है, इनऑर्गेनिक एसिड लाइक HCl, HNO3, इसको हम लोग H2SO4, ये कहलाता है मिनरल एसिड। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये RNH2 है और इसका रिएक्शन यदि HX के साथ करते हैं, इट फॉर्म्स RNH3 प्लस X माइनस, लाइक C2H5NH2 प्लस HCl। सो इट इज कॉल्ड ऑक्सोनियम सॉल्ट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सोनियम सॉल्ट। दूसरा जो इसका रिएक्शन है वो आपको इसको समझना है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। सो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स में ये इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, इसके बेसिस पे एक या दो प्रॉब्लम 1 मार्क्स का जरूर पूछता है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि ये जैसे RNH2 है, ये R2NH है और ये R3N है। तो यदि ये अमीन्स और ये अमोनिया है और ये एरोमेटिक अमीन है, तो हम लोग इसमें 5 कैटेगरीज ले रहे हैं इसका, बिकॉज अमोनिया इज बेस एंड अमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ABCDE, ये 4 लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट देखना है आपको इन गैसियस फेज। गैसियस फेज में जो स्ट्रेंथ होता है, इन गैसियस फेज स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ और बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर जो होगा तो इसमें टर्शियरी अमीन लेस देन
It is more than secondary, more than primary, more than ammonia and more than aromatic. इसमें कहीं कोई irregularities नहीं है, ये रेगुलर है. फर्स्ट इज टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, अमोनिया एंड लीस्ट वन इज एरोमेटिक अमीन्स. लेकिन जब इसी में ये क्या है, ये गैसियस फेज में है. लेकिन जब हम इसको वाटर मीडियम में डालेंगे तो वाटर मीडियम में जो इसका बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होता है. सो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन एक्वस मीडियम, so that is called basic strength of amine in aqueous medium. बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन एक्वस मीडियम, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? सो इट डिपेंड्स अपॉन, ये समझना है आपको ठीक से, यही कंसेप्ट है इस चैप्टर में मेन. इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट वन, ये कहते हैं हम लोग सॉल्वेशन इफेक्ट. सॉल्वेशन इफेक्ट. सेकेंड होता है इसमें दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट. And third one is called, that is steric factor. Steric factor. ये तीन फैक्टर पे जो है इसका बेसिक स्ट्रेंथ अमीन्स का डिपेंड करता है. सॉल्वेशन इफेक्ट, वाटर के केस में ये वाटर है तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है. और स्टेरिक फैक्टर का मतलब हुआ इन थ्री डायमेंशनल स्पेस. इन थ्री डायमेंशनल स्पेस इसमें हिंड्रेंस कितना है, रुकावट कितना है. तो इस तीनों फैक्टर पे ये डिपेंड करता है. सो द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन एक्वस मीडियम. देखो ये जो ज्यादा प्रॉब्लम जो पूछता है बोर्ड में. सो इन एक्वस मीडियम, यदि ये R मिथाइल ग्रुप है देन इट इज CH3 twice NH, देन CH3 NH2, देन CH3 thrice N, देन अमोनिया, देन एरोमेटिक अमीन. तो इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं 2 1 3. 2 1 3 इसलिए कहते हैं इसको कि सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी इफ R इज स्मॉलर ग्रुप. और जब R हमारा, R का जब लेंथ चेंज हो जाएगा, जब R जो है वो इथाइल ग्रुप हो जाएगा तो उसमें ये ऑर्डर जो है, जैसे यहाँ टर्शियरी, ये पहले क्या है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, फिर टर्शियरी है. लेकिन R का यदि लेंथ चेंज हो गया, इफ R इज C2H5 ग्रुप देन इट इज C2H5 ट्वाइस NH, देन टर्शियरी. ये ऑर्डर जो है ये आपको याद रखना है. ये A था, ये B है हमारा, और फिर ये आएगा प्राइमरी C2H5 NH2, फिर आएगा अमोनिया, और फिर आएगा इसमें एरोमेटिक अमीन एनिलीन. ये जो है इसको आप ऐसे याद रखोगे, ये एक ट्रिक्स है, मतलब शॉर्ट में याद रखने का. 2 3 1 मतलब 2 के बाद 3. जब ये एल्काइल ग्रुप बड़ा हो गया, मतलब इथाइल ग्रुप हो गया, तो ये 2 3 1 होता है. और जब ये मिथाइल ग्रुप है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, तो ये 2 1 3 है. 1 मीन्स छोटा ग्रुप, और अमोनिया देन एरोमेटिक. ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स. अच्छा देखो, कोई भी बेस जिसका Ka वैल्यू हाई होता है, तो Ka वैल्यू यदि हाई होता है तो उसका pKb वैल्यू लो होगा. बेस स्ट्रॉन्ग कौन होता है? इफ Kb वैल्यू इज हाई, बेस इज स्ट्रॉन्ग. बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा. और जिसका Kb हाई है तो pKb इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग Kb. मतलब ये Kb और pKb के बीच क्या रिलेशन है? माइनस लॉग Kb का. तो इफ Kb इज लो
then pKb is high and base is strong. बेस क्या है? बेस स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ये याद रखना है। इसलिए कई बार प्रॉब्लम में क्या होता है कि दिया हुआ होगा एसिड, मतलब बेस जो है, बेस दिया हुआ होगा तो बेस इज स्ट्रॉन्ग। यूनिवेरिकल वैल्यू दिया हुआ नहीं होता। जैसे यहाँ ये 231 है, तो यदि हम लोग इसका के बी वैल्यू सबसे हाई है, इसका पी के बी वैल्यू सबसे लो है, तो एक्सरसाइज में इसमें प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, नेक्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया आपका क्या, ये जो रिएक्शन एसिड के साथ, और दूसरा है बेसिक कैरेक्टर। तीसरा देखो, थर्ड रिएक्शन जो है ये अमीन्स का, ये रिएक्शन है, रिएक्शन विथ HNO2। थर्ड वन इज रिएक्शन विथ HNO2। तो रिएक्शन विथ HNO2 में क्या हो जाएगा कि जब प्राइमरी अमीन का रिएक्शन HNO2 के साथ करते हैं हम लोग, तो इट फॉर्म्स प्राइमरी अल्कोहल। ये हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी डिस्कस किए थे। जैसा हम लोगों ने देखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन जो है वो रिपीट होता है। तो यदि हम लोग इसमें इथाइल अमीन लेते हैं, और इस कई बार प्रॉब्लम में HNO2 नहीं लिख के HNO2 एंड HX लिखा हुआ होगा 0 to 5 डिग्री, सो इट फॉर्म्स C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। क्योंकि देखो ये HNO2 पहले तो बनता तो HNO2 ही है, क्योंकि HNO2 इज हाईली अनस्टेबल एसिड। HNO2 को हम लैब में स्टोर करके नहीं रखते हैं, जिस समय इसकी रिक्वायरमेंट होती है उस समय इसको प्रिपेयर करते हैं। यदि स्टोर करेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे HNO2 इज कन्वर्टेड इनटू HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसलिए हम इसको स्टोर नहीं करते। तो इसलिए आपको देखना है कि प्रॉब्लम में कई बार ये NaNO2 और HCl HBr दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये कहलाता है कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो कार्बाइल अमीन टेस्ट, इट इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमीन। सो व्हेन प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक अल्कली, इट गिव्स आइसोसानाइड। आइसोसानाइड क्या है? ये फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है ना, इसका पंजेंट स्मेल होता है, तो उससे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज RNH2 प्लस CHCl3 प्लस NaOH अल्कोहलिक। जब NaOH अल्कोहलिक के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, इट फॉर्म्स RNC प्लस NaCl प्लस H2O। तो ये बनता है, ये कहलाता है, इसको कहते हैं एल्काइल आइसोसानाइड, और इसी को कहते हैं हम लोग कार्बाइल अमीन। इट इज कॉल्ड कार्बाइल अमीन। तो यदि यहाँ हम लोग C2H5NH2 लेते हैं, तो C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस NaOH और KOH, ये यदि अल्कोहलिक है तो ये फॉर्म C2H5NC, और बाय प्रोडक्ट जो है वो KCl प्लस H2O। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन्स। उसके बाद नेक्स्ट है इसका एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। यदि हम लोग अमीन का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में भी डिस्कस किया था, तो ये क्या होता है, जैसे रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे हम लोग, जैसे ये RNH2 है, इसका रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं, ये होगा R2NH प्लस HX, नहीं, और इसी का जब रिएक्शन आप करोगे रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड में क्या होता है, एसिड का OH जो है वो हैलोजन से रिप्लेस होता है। तो इसमें RNH2 है, ये RNH2 प्लस RC डबल बॉन्ड OX, तो ये H और ये X रिमूव हो गया, ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड ONHR। जैसे ये है C2H5NH2
और इसका रिएक्शन यदि हम लोग CH3COCl के साथ करेंगे तो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको कि ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड ONH, ये C2H5। तो ये जो प्रोसेस है ये है एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन इसका। तो अमीन्स का रिएक्शन जो है मेनली ये एग्जाम में दो ही प्रॉब्लम ज़्यादा पूछता है जहाँ तक इसका रिएक्शन है, एक कार्बाइल अमीन टेस्ट और दूसरा रिएक्शन विद HNO2। और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे एनिलीन का। सो इसमें केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन में क्या देखते हो आप कि एनिलीन जो है वो फर्स्ट तो जब हम एनिलीन का रिएक्शन करेंगे NaNO2HCl के साथ 0 to 5 डिग्री पे, तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2+X-। और जैसा आप जानते हो कि एनिलीन एरोमेटिक कंपाउंड है, सो इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, it undergoes electrophilic substitution reaction and it is highly reactive towards electrophilic substitution reaction। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि एनिलीन जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। ये क्यों नहीं देता? क्योंकि एनिलीन जो है वो क्या है, बेस है, और इसका रिएक्शन जब एल्काइल हैलाइड के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में करते हैं इट डज नॉट गिव्स द प्रोडक्ट। क्यों नहीं देता प्रोडक्ट? क्योंकि ये एनिलीन जो है क्या है, ये बेस है और ये AlCl3 क्या है, ये लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड और लुईस बेस जो है वो रिएक्ट कर जाता है, इसलिए रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। उसी तरह से ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी नहीं देगा। मतलब जब NH2 का रिएक्शन हम RCOX के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इट डजंट गिव्स द प्रोडक्ट। सेम रीजन, ये लुईस एसिड है और ये बेस है, लुईस बेस है। तो जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, वो उसको लगता है कि जो है वो तो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए यहाँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पे ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे यहाँ अल्काइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप को लिख देता है। तो इसलिए इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इट डजंट अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। और इसका ये देखो, इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक इसलिए है कि इसका प्रोडक्ट कुछ अलग हटके बनता है। जैसे इसका यदि हम लोग हेलोजिनेशन करते हैं, मतलब एनिलीन का रिएक्शन यदि ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे, इन ब्रोमीन वाटर इट गिव्स व्हाट, NH2 Br, ये प्रोडक्ट देता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। लेकिन यदि आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, मतलब ये Br ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होना चाहिए, यदि हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो इस ग्रुप को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए रिएक्शन जो है CH3COCl के प्रेजेंस में या जो है CH3CO2O के प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं इसका। ये ग्रुप जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, मतलब पहले वो NHCO CH3 में चेंज हो जाएगा। तो इसमें बीच का स्टेप जानने की जरूरत नहीं है, इसका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो ये रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। उसी तरीके से इसका नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन इज हाईली स्पेसिफिक। तो नाइट्रेशन को थोड़ा ढंग से समझ लो आप इसको। जैसे नाइट्रेशन में क्या होता है कि एनिलीन का यदि हम नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं, और नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। तो एस्पेक्ट तो हम यही कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे बनना चाहिए। मतलब ये जो NH2 यहाँ NO2 है, लेकिन यहाँ आप ये देखोगे कि ये जो है काफी हाई
परसेंटेज में मेटा पोजीशन पे भी ये NO2 आता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑर्थो पे भी आया और ये पैरा पे भी आया और मेटा पे भी आया। तो ऑर्थो पे केवल 2% होता है, इसमें 51% होता है, और ये जो है ये 47% जो है वो ये बना हुआ होता है मेटा पोजीशन। तो ये काफ़ी हाई कंपोजिशन है, मतलब हाई परसेंटेज में है इसका। तो इसका रीज़न ये होता है कि ये जो नाइट्रिक एसिड है तो इसका जो ये एसिडिक है नेचर में, तो पहले ये ये जो है एनिलीनियम आयन बना देता है, एनिलीनियम आयन। तो एनिलीनियम आयन बन जाता है, इसलिए एनिलीनियम आयन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए ये बनता है। अब सपोज इसमें हम चाह रहे हैं कि इसमें हमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये प्रोडक्ट चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो फिर क्या करेंगे, हम इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब ये ग्रुप बनने ही नहीं देंगे। जब NH3 ग्रुप बनेगा ही नहीं तो इसमें डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करते हैं, तो पहले इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3 ट्वाइस CO के साथ, या फिर तो इससे पहले ये ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसके बाद इसका नाइट्रेशन करते हैं। तो इसलिए इसमें ये याद रखना है कि व्हेन वी हैव टू प्रोटेक्ट द ग्रुप, सो फर्स्ट इट इज ट्रीटेड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड देन नाइट्रेशन टेक्स प्लेस, सो यू विल गेट ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसका ये है सल्फोनेशन। तो जब हम लोग सल्फोनेशन करते हैं इसका, तो इसमें ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है, ज्यूटर आयन। इसलिए एनिलीन का रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में जब हम लोग रिएक्शन एनिलीन का करेंगे, NH2 का H2SO4 के साथ, तो ये जो है ये प्रोडक्ट पहले बनता है इसमें NH2 और ये SO3H है, ये कहलाता है बेंजीन सल्फानिलिक एसिड, बेंजीन सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड। और ये जो ये H एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये यहाँ चला आएगा, यहाँ प्रोडक्ट बनता है ये NH3 प्लस एंड SO3 माइनस, सो दैट इज कॉल्ड ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन मीन्स द सेम कंपाउंड फॉर्म्स प्लस एंड माइनस, इट इज कॉल्ड ज्यूटर आयन। और एनिलीन का जो है लास्ट रिएक्शन है एनिलीन का, वो है कपलिंग रिएक्शन। और फिर हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट भी साथ साथ ही डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें नेक्स्ट रिएक्शन जो है सिक्स्थ वन, इट इज कॉल्ड रिएक्शन विथ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे ये एनिलीन है, इसका H प्लस ये डाइजोनियम सॉल्ट है, क्लोराइड ले लो आप, N2 बेंजीन रिंग, तो ये HCl रिमूव हो जाएगा। आपको क्या करना है, इससे केवल HCl को रिमूव कर देना है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा NH2 ऐसे एज इट इज होगा, ये N डबल बॉन्ड N और ये रिंग है, ये कहलाता है ये जो है इसको कहते हैं हम लोग येलो डाई, इसमें येलो डाई का फॉर्मेशन होता है ना। तो इस तरीके से एनिलीन का जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी फिनिश हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डाइजोनियम सॉल्ट का। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन जो है वो काफ़ी इजी होता है। मैं इसको टेबुलर फॉर्म में ही लिख देता हूँ एक जगह, ताकि काफ़ी इजी वे में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसका जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसको यदि हम बॉयल कर देते हैं वाटर के साथ, तो ये डायरेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। इसका रिएक्शन H3PO2 के साथ करते हैं तो बेंजीन बन जाता है। इसका रिएक्शन CH3OH के साथ करते हैं तो इससे भी बेंजीन बन जाता है ना। और देखो इसका रिएक्शन जब आप Cu2H2 के साथ HX के प्रेजेंस में करोगे, है ना, तो इसमें जो है ये X बनता है, इसको हम लोग कहते हैं, इट इज कॉल्ड सेंडमेयर्स रिएक्शन।
सेंड मेयर्स रिएक्शन। और यही रिएक्शन जब कॉपर के साथ HX के प्रेजेंस में होता है, इसको कहते हैं हम लोग गेटरमैन रिएक्शन। इसलिए आपको ये याद रखना है, नेमिंग रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है सेम बनता है, लेकिन ये डिफरेंस है इसका, बीच में जो कैटलिस्ट यूज मतलब इसका जो रिएक्टेंट यूज करते हैं वो डिफरेंट है। उसके बाद इसका रिएक्शन यदि आप करते हो किसके साथ, फ्लोरिक एसिड के साथ, है ना। तो इस तरीके से HBF4 के साथ जब रिएक्शन करते हैं, ये N2BF4 बनता है। और फिर जब इसका रिएक्शन हम लोग इसको सिंपली यदि हम हीट कर दें तो इससे फ्लोरोबेंजीन बनेगा, F प्लस N2 प्लस BF3, ये रिमूव होता है। इससे फ्लोरोबेंजीन का भी फॉर्मेशन होता है, फ्लोरीन ग्रुप को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसका रिएक्शन जो है वो, यदि यहाँ ये रिएक्शन करने के बाद फ्लोरोबेंजीन के साथ यदि यही रिएक्शन हम लोग NaNA2 के साथ कर देंगे, NaNO2 के साथ, तो हीट कर देंगे इसको, यहाँ ये ग्रुप NO2 ग्रुप आ जाएगा, प्लस NaF प्लस BF3 रिमूव हो जाएगा, मतलब नाइट्रोबेंजीन भी बन गया। नाइट्रो ग्रुप को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग। और इस तरीके से देखो, इसको जब बॉयल करोगे आप तो फिनॉल बन जाएगा, और इससे ये ग्रुप मतलब हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो गया, बेंजीन बन जाएगा। ये सेंड मेयर रिएक्शन है, ये गेटरमैन रिएक्शन है, इसमें फ्लोरोबेंजीन बना और नाइट्रोबेंजीन बना। अब जो इसका लास्ट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे डायजोनियम सॉल्ट का, वो है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में दो तरीके से हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं इसका। एक तो रिएक्शन जब एनिलीन के साथ होगा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एनिलीन के साथ ये येलो डाई बनाता है, और जब इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ होता है ये ऑरेंज डाई बनाता है। दोनों जगह रिएक्शन का नेचर जो है वो सेम है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है रिएक्शन। जब आप फिनॉल के साथ रिएक्शन करोगे तो फिनॉल का जो OH है इसके अपोजिट डायगोनली पोजीशन पे जो होता है, जो पैरा पोजीशन है, उससे हाइड्रोजन अटैच होगा और N2 बेंजीन रिंग के साथ जो है ये HX रिमूव हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट लिख देना, यही कहलाता है कपलिंग रिएक्शन। कपल हो जाना मतलब दो रिएक्शन एक साथ अटैच हो जाना है। और जैसे अभी मैंने जस्ट बताया था कि ये जो N2Cl है, तो एनिलीन को आप ऐसे लिख दोगे NH2 को, और इसके पैरा पोजीशन डायगोनली अपोजिट जो है, और यहाँ से ये X रिमूव हो जाता है। तो HX को रिमूव कर दो, तो केवल क्या करना है, सामने सामने लिख देना, आमने सामने आपको N डबल बॉन्ड N, ये रिंग है, और यहाँ ऑलरेडी जो पहले से अटैच है NH2, तो ऐसे याद रखोगे फिनॉल ऑल के साथ ऑरेंज डाई, तो एनिलीन के साथ येलो डाई। तो इस तरीके से हमने सारे मेथड जो है वो डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पूरा रिएक्शंस कन्वर्जन के साथ डिस्कस करेंगे। आप सब्सक्राइब जरूर करना, और इसको जो है सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट डे जैसे आप जगोगे तो आपको इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हम लोग जैसा कि बोर्ड सीरीज पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम अब नेक्स्ट क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। उसमें और ज़्यादा ट्रिक्स है, जो डिफिकल्ट पार्ट था उसको तो हमने काफ़ी सिंपल वे में किया, और वो उसको और सिंप्लीफाइड वे में करेंगे ताकि इजीली आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, देन सी यू।